آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، حکومت کا پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے کی کمی، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 265 روپے 65 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں شایان علی سے۔ شایان، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، حکومت پاکستان کی جانب سے جو ہے رد و بدل کیا گیا ہے، جس کے تحت ڈیزل کی جو قیمت ہے اس میں تو کمی کی گئی ہے، جس میں تقریباً 14 روپے جو ہے ڈیزل سستا کیا گیا ہے، لیکن جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ برقرار رکھی گئی ہے، جس کی قیمت جو ہے وہ اگر میں بتاتا چلوں کہ 263 روپے اور 65 پیسے ہے، جو کہ برقرار ہے، اور جو ڈیزل کی نئی قیمت ہے وہ 14 روپے کمی کے بعد جو ہے 265 روپے اور 65 پیسے جو ہے وہ کر دی گئی ہے، جس پر شہریوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمت میں بھی جو ہے کمی لائی جاتی تو بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ کراچی کے شہری جو ہے وہ عموماً موٹر سائیکل کا اور کاروں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگرچہ پیٹرول کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ کمی ہوتی تو اس سے بڑا فرق ہوتا اور ان کے لیے کچھ ریلیف ہوتا۔ جس طرح مہنگائی کا دور ہے اور ہر چیز مہنگی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس دوران جو ہے پیٹرول کی قیمتوں سے بڑا فرق پڑتا ہے، لیکن جو ڈیزل کی کمی ہے اس سے بھی کہیں نہ کہیں جو ہے عوام کو فرق پڑتا ہے، فائدہ ہوگا، لیکن جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو یقیناً اس سے فائدہ ہوگا، اور ان کی جانب سے جو ہے کہا گیا کہ حکومت کا اچھا جو اقدام ہے کہ ڈیزل کی جو ریٹ ہے اس میں کمی کی گئی ہے، اور اسی طرح شہریوں کی جانب سے جو ہے پیٹرول کی قیمتوں کی جو امید لگائی گئی تھی کہ کمی لائی جائے گی، وہ امید جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی امید کے طور پہ رہ گئی ہے، اور آج جو حکومت پاکستان کی جانب سے صرف اور صرف جو ہے ڈیزل کی 14 روپے جو ہے کمی کی گئی ہے، اور جو پیٹرول ہے وہ برقرار رکھی گئی ہے۔ اگر میں کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ دکھا سکیں کہ اس وقت ہم پیٹرول پمپس میں یہاں پر موجود ہیں، اور جو یہاں پر اکا دکا جو شہری آ رہے ہیں کیونکہ موسم بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے یہاں پر، اور جو پیٹرول کے ریٹ ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھنڈے ہو گئے، جس کے تحت جو ہے شہریوں کی جانب سے یہی شکایت کی جا رہی ہے کہ حکومت پاکستان کو چاہیے تھا کہ پیٹرول کی جو قیمت ہے اس میں کمی لاتے تاکہ جو عام ایک شہری ہے اس کو فرق پڑ سکے، کیونکہ ڈیزل سے تو یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑے کاروباری حضرات ہیں یا جو ٹرانسپورٹ کا کام کرنے والے ہیں ان کو فرق پڑتا ہے، لیکن جو پیٹرول ہوتا ہے اس سے یہ ہوگا کہ کراچی کے شہری جو موٹر سائیکلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ بڑی ایک تعداد ہے وہ مڈل کلاس کی بھی جو ہے وہ موٹر سائیکل کا استعمال کرتی ہے۔ آپ کو بتائیں تاجروں کا کراچی کے لیے صاف پانی موٹر وے کا مطالبہ، تاجر رہنما وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کے سامنے پھٹ پڑے۔ صدر کراچی چیمبر ریحان حنیف بولے، میں نوجوان تھا جب K4 کا نام سنا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، پینے کا صاف پانی ملے تو اسپتال ویران ہو جائے۔ چیئرمین بزنس گروپ زبیر موتی والا کا شعبہ صحت میں بہتری لانے پر زور، جاوید بلوانی کی شہر سے پولیو کے خاتمے کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ نائب چیئرمین انجم نثار نے پانی کو ٹریٹ کرنے کے لیے مل کر فنڈ ریزنگ کی تجویز دے دی۔ پینے کا صاف پانی ہر بندے کو میسر ہو تو منسٹر صاحب ہمارے اسپتال جو ہے نا ویران ہو جائے۔ منسٹر صاحب میں نوجوان تھا جب میں نے K4 کا نام سنا، اب میں بڑھاپے کے دائرے میں پہنچ گیا ہوں، آج بھی K4 کا کوئی ڈیٹ کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کب آئے گی یا نہیں آئے گی۔ ہمیں موٹر میں وہی چاہیے جو اسلام آباد لاہور ہے، لاہور ہے یا سکھر سے روڑی تک کا ہے۔ کراچی رہنے کے لیے بدترین جگہ بن چکا، وفاقی وزیر کا بھی اعتراف۔ مصطفیٰ کمال بولے، کراچی کے 90% علاقوں میں صاف پانی نہیں، ہماری لائنوں کا پانی ہمیں بیچا جا رہا ہے، شہر کی ایسی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ پاکستان کی 50% برآمدات کراچی سے ہیں، یہ دودھ دینے والی گائے ہے، اسے چارہ تو کھلاؤ۔ درجنوں تقریر ہے میری فلور آف دی ہاؤس پہ کیبنٹ کے اندر کہ بھئی آپ کو IMF جو ہے وہ پاکستان کو اس اکانومک کوگمائر دلدل سے نہیں نکال سکتا، کراچی نکال سکتا ہے۔ یہ دودھ دینے والی گائے کو چارہ تو کھلاؤ بھائی۔ بینکنگ کا نظام ہمارے پاس ہے، 50% پاکستان کی ایکسپورٹ سے زیادہ یہاں پر ہمارے پاس ہے۔ اس شہر میں پینے کا پانی 90% پینے کا پانی جو ہے وہ لوگ خرید کر پی رہے ہیں۔ کراچی چلے گا تو پاکستان کے اوپر کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کمیٹی نے 4 پالیسی کے بعد شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کی کمی کر دی، شرح سود 11% سے کم ہو کر 10.5% ہو گئی۔ FPCCI نے شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کمی کو ناکافی قرار دے دیا۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ معیشت کا اہم دن، شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹ کمی، اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی سربراہی میں مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں اہم معاشی عدد و شمار کا جائزہ لیا گیا، جس کے بعد مانیٹری پالیسی بیان میں شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹ کمی کا اعلان کر دیا گیا۔ شرح سود 11% سے کم ہو کر 10.5% پر آ گئی۔ FPCCI سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو نے شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹ کمی کو ناکافی قرار دے دیا۔ پالیسی بیان میں کہا کہ جولائی 25 سے نومبر 25 تک مہنگائی کی اوسط
सच शरह ज्यादा तब्दीली नहीं देखी गई। मईशत बहाली की तरफ गामजन है। बड़े पैमाने की सनतों में बेहतरी हुई। आलमी मार्केट की सूरत हाल पाकिस्तान के बरामदी सेक्टर के लिए चैलेंज है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म, हड़ताल जारी है। वफाकी वज़ीर समेत हुकूमती कमेटी के अरकान कल मुज़ाकरात के लिए कराची पहुंचेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। सदर पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट अलायंस शहजाद अवान का कहना था कि ऑनलाइन मुज़ाकरात में अब्दुल अलीम खान ने हमारे तमाम मुतालबात को जायज़ करार दिया। हमारी मुज़ाकराती कमेटी के साथ एक बड़ी अहम डिस्कशन हुई है। मिनिस्टर साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि ट्रांसपोर्टर्स के तमाम मुतालबात जो हैं बिल्कुल जायज़ हैं और फौरी तौर पर इनको हम हल करने की यकीन दहानी करवाते हैं। हमने मिनिस्टर साहब को भी ये कहा कि सिर्फ यकीन दहानी के ऊपर जो है हम स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं करेंगे। हमने अपना अलीम खान का शुक्रिया अदा किया है। 8 दिनों के बाद उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि ट्रांसपोर्ट बरादरी जो है मुश्किल में है, जो में बड़ी फिक्र की बात है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कराची के शहरियों को खुशखबरी सुना दी है। डबल डेकर बसें कराची बंदरगाह पर पहुंच गईं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कराची के आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, डबल डेकर बसें कराची बंदरगाह पहुंच चुकी हैं। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि इंशाल्लाह जल्द सड़कों पर आएंगी। कराची के लिए डबल डेकर बसें बंदरगाह पर पहुंच गई हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि महकमे ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध के जानिब से डबल डेकर बसें इंशाल्लाह जल्द सड़कों पर लाई जाएंगी। शर्जील इनाम मेमन ने समाजी राबतों की वेबसाइट एक्स पर डबल डेकर बसों की तस्वीर भी शेयर कर दी जो कराची बंदरगाह पर खड़ी है। उधर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चालानिंग सिस्टम शुरू हुए 51 रोज़ मुकम्मल हो गए। शाहराहों पर ट्रैफिक की कैमरों के जरिए कड़ी निगरानी जारी है। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों के साथ साथ सरकारी गाड़ियों और हैवी ट्रैफिक के भी चालान किए जा रहे हैं। तफसीलात में राज अख्तर की रिपोर्ट में। हैवी ट्रैफिक, सरकारी गाड़ियां और शहरी निशाने पर कराची में ई चालानिंग का 51वां रोज मुकम्मल हो गया। डीआईजी ट्रैफिक के दफ्तर में कायम मॉनिटरिंग रूम से शहर की शाहराहों पर ट्रैफिक की मुसलसल निगरानी की जा रही है। 51 रोज में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1,38,000 से जायद चालान जारी किए जा चुके हैं। इंचार्ज मॉनिटरिंग रूम चौधरी जायद ने बताया कि सरकारी गाड़ियों, पुलिस मोबाइल्स और हैवी ट्रैफिक को भी सख्ती से चालान किया जा रहा है। हैवी ट्रैफिक में डंपर्स, ट्रक, ऑयल टैंकर्स और वाटर टैंकर्स शामिल हैं, जिनमें से 2,500 से जायद को चालान किया गया। बिल्कुल 1,38,000 से ज़्यादा टिकट हम अभी तक इशू कर चुके हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ वायलेशन में जो है टिकट इशू किए गए हैं। सबसे ज़्यादा सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करना दौरान ड्राइविंग, इसके अलावा मोटरसाइकिल पर हेलमेट का इस्तेमाल न करना। हैवी व्हीकल्स को ट्रैकर के ज़रिए उनकी ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल किया जा रहा है और उस पर उनको टिकट इशू किए जा रहे हैं और अभी तक 2,500 से ज़्यादा हम हैवी ट्रैफिक को टिकट इशू कर चुके हैं। इंचार्ज मॉनिटरिंग रूम ने कहा कि मोटरसाइकिल सवार शहरी अपनी मुकर्ररा लेन में रहें और हेलमेट का इस्तेमाल करें ताकि हादसा से महफूज रह सकें। जी देखें, जो हादसा होते हैं कराची में उसमें 70% जो है मोटरसाइकिलिस्ट उसके अंदर जो है हादसा का शिकार होते हैं। वो ख़ास वजह उनकी है कि वो अपनी लेन और लाइन में गाड़ी नहीं चला रहे, तो उनके लिए लेफ़्ट लेन मखसूस की गई है। जो पहली लेन है उनसे गुजारिश है कि वहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, ओवर स्पीडिंग से गुरेज करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, मोटरसाइकिल पर साइड मिरर का इस्तेमाल करें, चेन कवर लगाएं ताकि वो हादसा से बच सकें। पुलिस हुक्काम ने शहरियों से अपील की है कि वो रॉन्ग वे, तेज़ रफ्तारी और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से गुरेज करें, क्योंकि कैमरे 24 घंटे ट्रैफिक की निगरानी कर रहे हैं। कैमरामैन काशिफ के साथ मैं राज अख्तर, T21। हुकूमत सिंध ने कराची में ट्रैफिक हादसात को संगीन मसला करार दे दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजान ने सिंध असम्बली में एतराफ़ किया है कि रवां साल के दौरान 250 अफराद जाँ बहक हुए। कराची में यूनियन कमेटियों को 3 अरब रुपए मिल चुके मगर काम कोई नहीं। तफसीलात आज जमाली की रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक। स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास हुआ। MQM के रुकन माज महबूब के तवज्जुह नोटिस के जवाब में वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने ऐवान में कहा कि ट्रैफिक हादसा संगीन मसला है, तभी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाई है। उसका बुध के रोज़ पहला इजलास होगा। रवां साल ट्रैफिक हादसात में 250 अफराद जान की बाजी हार गए। अलबत्ता डंपर्स के 1-1 लाख रुपए के चालान किए गए हैं। 12,000 हेवी गाड़ियों में स्पीड मीटर भी लगाए गए। इस मसले पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। ट्रैफिक इशू है, कराची की आबादी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर हमें उसमें ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश करनी और सबको उसमें हिस्सा लेना है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी। हमारे दोस्त
पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग मुख्तलिफ जमायतों के कर रहे हैं। एमक्यूएम के रुकन अब्दुल बासित ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पर कहा कि यूनियन कमेटियों का फंड्स 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 13 लाख रुपए कर दिया गया है, लेकिन यूसीज काम कोई नहीं करती, उनका एहतसाब कौन करेगा। अब मेरा सवाल ये है कि जब 5 लाख मिलते थे तब भी फंड नहीं था, 12 लाख मिलते हैं तब भी फंड नहीं है, एक गटर का ढक्कन नहीं दे रहे ये लोग, स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगा रहे, कोई छोटा मोटा सीवरेज का काम नहीं कर रहे इलाकों में, और ये जमीनी खुदा बने हुए हैं ये यूसी चेयरमैन। यूनियन काउंसिल्स को के लिए मैंडेटरी किया जाए कि मंथली जब ये 12 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर करे, अपने नोटिस बोर्ड पे लगाए कि इन्होंने कितने गटर के ढक्कन लगाए, कितनी स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं। पार्लियामानी सेक्रेटरी कासिम सिराज सुमरो का कहना था कि हमारा विजन है कि बल्दियाती इदारों को मजबूत किया जाए, जो यूसीज काम नहीं करेंगी उनका एहतसाब भी होगा। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने भी अभी वेरी रिसेंटली हमारे एलएसए के जो लोकल गवर्नमेंट काउंसिल्स की जो इजलास था उसमें उन्होंने कहा है कि हम फर्दर इसको एम्पावर कर रहे हैं। हमारा चेयरमैन साहब का भी विजन है कि हम इसको फर्दर एम्पावर कर रहे हैं, तो हम इसको और एम्पावर करेंगे इंशाल्लाह। बट हैविंग सेड कि हम विल इंश्योर कि ट्रांसपेरेंसी एंड यूटिलाइजेशन बोथ आर इंश्योर्ड एट द ग्रास रूट लेवल। सूबाई वजीर बराए तरक्की नस्मा शाहिना शेर अली ने मुख्तलिफ मेंबरान के सवालात के जवाब में कहा कि ख़वातीन के लिए हॉस्टल्स तामीर हो रहे हैं, हॉस्टल्स के करीब हुनरमंदी के मराकज़ भी बनाए जाएंगे। जैकमाबाद में हमारे पास डिमांड ज़्यादा थी, तो जैकमाबाद में भी हमने जो है ना दारुलमान के साथ ही जो है वो 4 कमरों का एक सेंटर बनाया है, जहाँ पे स्टिचिंग, ज्वेलरी मेकिंग और ब्यूटिशियन के कोर्सेज जो हैं वो चल रहे हैं। सिंध असेंबली में गवर्नर सिंध से मंजूर शुदा बिलों का ऐलान किया गया। स्पीकर अवैस कादिर शाह ने इजलास कल दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। और नाज़रीन, तरक्याती कामों में सुस्ती का मुजाहरा करने वाले ठेकेदार खबरदार हो जाएं। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंजीनियरिंग ने नोटिस दे लिया है और शुरू कर दिया है। मुकर्ररा मुद्दत के मुताबिक काम मुकम्मल न करने वालों की अदायगियाँ रोक दी जाएंगी। तर्जमान बल्दिया उस्मा कराची दानियाल आलिशान का कहना है कि मेयारी काम न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। मेयर कराची की हिदायत पर तरक्याती काम में गफलत का मुजाहरा करने वालों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील अव्वली तरजीह है। इंतजामिया की अदम तवज्जोही ने शाहराहों की हालत ख़राब कर दी। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में वीटा चौरंगी से शान चौरंगी तक बरसाती नाला उबलने से सड़क गंदे पानी का जहाड़ बन गई। सनतों के मुलाजमीन का कहना है कि साल भर वक्फे से नाला उबलने के बायस ट्रैफिक जाम और हादसात मामूल बन चुके हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। टैक्स अरबों में सहूलियात सिफर, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का नौहा। बरसाती नालों और खुले मेन होल्स में शहरियों के गिरने के वाकयात से भी इंतजामिया सबक हासिल करने में नाकाम। कोरंगी रोड की वीटा तक शान चौरंगी का नाला मसाइल का सबब बन गया। मरकजी सर्विस रोड का निफ्स किलोमीटर का हिस्सा गंदे पानी में डूबा हुआ है। आर्जी तौर पे इसकी सफाई हो जाती है, ये कचरा बाहर निकाल देते हैं, फिर ये वापसी कचरा अंदर चले जाता है, फिर ये भर जाता है। और ये तकरीबन काफी अरसे से ही देख रहा हूँ मैं, 1 साल तो होगा इसको, अभी तक ये जो है ना ये गंदगी आपके सामने नजर आ रही है, काफी टाइम से निकली हुई है। काम तो करके जाते हैं, वो ऐसा काम करके जाते हैं कि थोड़े दिन तक वो चल रहा होता है, फिर दोबारा ये नाला भेजा। शहरी कहते हैं हादसात और ट्रैफिक जैम रोज का मामूल बने हुए हैं। नाले की सफाई अव्वल तो होती नहीं, अगर हो भी जाए तो गंदगी उठाई नहीं जाती, जिससे नाला बार बार उबल पड़ता है। ये तकरीबन साल हो गया देख रहे हैं, उनको परेशान है, लोग आने जाने में परेशान है, ये पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये खत्म ही नहीं होता। सालों साल चल रहा है ये ऐसे इधर 24 घंटे यही चक्कर है, और आए दिन क्रॉस करने में कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं इसी चक्कर में। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के सनतकार यौमिया करोड़ों रुपए टैक्स अदा करते हैं, मगर इंतजामिया इनके मसाइल हल करने में संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। कैमरामैन नवीदुर रहमान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सदर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एसोसिएशन ने वफाकी हुकूमत के सामने मुतालबात रख दिए। सदर तारिक गुजर ने कराची पोर्ट ट्रस्ट के एतराफ 2000 गाड़ियों के गुंजाइश पर मुश्तमिल पार्किंग एरिया के क़याम का मुतालबा कर दिया। तफसील काविश मेमन की रिपोर्ट में। लोकल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के वफाकी हुकूमत से मुतालबात। कराची पोर्ट के अतराफ पार्किंग एरिया नागुज़ीर करार।
सदर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एसोसिएशन तारिक गुज्जर का कहना है कि कराची पोर्ट पर कायम 3 टर्मिनल्स पर पूरे पाकिस्तान से रोजाना हजारों गाड़ियां आती हैं। पार्किंग एरिया ना होने के बायस गाड़ियां सड़कों पर खड़ी की जाती हैं, जिससे ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं। जायज मुतालबा है कि ट्रांसपोर्टरों को, जो लोकल ट्रांसपोर्टर है कराची के, इनको एक पार्किंग एरिया दिया जाए जहाँ पे 1500 से 2000 गाड़ी खड़ी हो सकती हो, और जो भी डॉक्यूमेंट है उसी पार्किंग एरिया में मुकम्मल होंगे। जैसे ही डॉक्यूमेंट मुकम्मल हो जाया करेंगे कस्टम के और केपीटी के, तो हमारी गाड़ियां वो टर्मिनल की तरफ मूव कर जाएंगी। ट्रांसपोर्टर्स कैरियर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फैजान खान नियाजी ने बताया कि केपीटी को तमाम मुतालबात से आगाह कर दिया गया है कि पार्किंग की मखसूस जगह फौरी तौर पर अलॉट की जाए। सीधा मसाइल लिखकर, जिनमें सर फहरिस्त हमने कराची के लिए, कराची पोर्ट के लिए जो मखसूस जगह है पार्किंग की, उसके मुतालबा किया है हमें ये पार्किंग एरिया अलॉट करें, जिससे शहरी इंतज़ामिया, हमारे कराची के लोग और ट्रांसपोर्टर सुख का सांस पाएंगे। टीजीए के चेयरमैन पोर्ट कासिम कमेटी हमास खान लोधी बोले, मजमूई तौर पर 37,000 स्क्वायर फीट जगह अलॉट की गई। वक्त गुजरने के साथ ही जगह कम होती गई। अब जगह सिर्फ 7 से 8,000 स्क्वायर फीट रह गई है, जो मौजूदा जरूरियात के लिए नाकाफी है। 96 के भी लेटर हैं, 2018 के भी लेटर हैं। हमें टोटल 37,000 स्क्वायर फीट एलोकेट हुई थी जगह, बट उसके बाद 18,000 पे आई, और अभी हमारे पास पार्किंग का स्पेस सिर्फ 7-8 हज़ार स्क्वायर फीट है, जो कि बहुत कम है। टीजीए कोर कमेटी के चेयरमैन हाजी मोहम्मद यूसुफ ने वाज़ेह किया कि इस बार ट्रांसपोर्टर्स किसी भी किस्म की यकीन दहानी या लॉलीपॉप कबूल नहीं करेंगे। पार्किंग एरिया की बाकायदा मंजूरी से अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। जब यहाँ पे लठी जटी पे ट्रैफिक जाम होती है तो पूरा बंदर रोड जाम हो जाता है। बंदर रोड से लेके पूरा इधर किमाड़ी तक, इवन जो बाईपास बनाया हुआ वहाँ पे भी बंदा एक घंटा टाल टैक्स पे खड़ा रहता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एसोसिएशन ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि कराची पोर्ट के अतराफ फौरी तौर पर बाकायदा पार्किंग एरिया अलॉट किया जाए, क्योंकि पार्किंग सहूलत न होने से सड़कों पर गाड़ियों का रश पड़ रहा है। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट, आईनी बेंच, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय फिल्म धुरिंदर में पीपल्स पार्टी की रैली और शहीद बेनजीर भुट्टो की तस्वीर का मामला। राइटर, प्रोड्यूसर और अदाकारों के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। जनूबी की अदालत ने SHO दरख्शां से रिपोर्ट तलब कर ली। जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने में मुलव्विस मुबैना अफगानी शहरी के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त मुस्तरद। आईनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं, दरख्वास्त नाकाबिले समाअत है। पुलिस मुकाबला, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी एक्ट। सुन्नी तहरीक के मरकज से गिरफ्तार 9 मुल्जिमान अदालत में पेश। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्जिमान को 5 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालती अहकामात के बावजूद रिटायर्ड अफसर को पेंशन जारी ना हो सकी। आईनी बेंच ने DG सिविल एविएशन अथॉरिटी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। घनी अमान चांडियो और सरमद मिरानी के खिलाफ धमाका खेज मवाद रखने का केस। सिंध हाईकोर्ट ने दोनों मुल्जिमान की जमानतों में 21 जनवरी तक की तौसीह कर दी। कोरंगी की लड़की की पसंद की शादी का केस। आईनी बेंच ने लड़की को शोहर के साथ जाने की इजाजत दे दी। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट के बाद दरख्वास्त निपटा दी। मुस्लिमाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी ग्रीन बेल्ट पर गैर कानूनी तामीरात पर अदालत बरहम। आईनी बेंच ने SBCA और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फ्रीकैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड साज दिन, कारोबार बुलंदतरीन सतह पर बंद हुआ। दौरान कारोबार इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,71,001 की सतह तक पहुंच गया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स नई बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। तारीख में पहली बार 1,71,000 की सतह अबूर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम तारीखी तेजी के साथ हुआ, जहां 100 इंडेक्स 876 पॉइंट्स इजाफे से 1,70,441 की सतह पर बंद हुआ। कारोबारी दिन के दौरान 100 इंडेक्स ने बुलंद तरीन सतह 1,71,001 जबकि कम तरीन सतह 1,70,292 रिकॉर्ड की। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,71,000 की सतह को छूने में कामयाब रहा। मार्केट में तेजी की बड़ी वजह शरह सूद में कमी है, जिसके बाद सरमायाकारों की दिलचस्पी में नुमाया इजाफा हुआ और भरपूर खरीदारी देखी गई। दूसरी मसाइल तो ये है कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने माल अपना बेचना बंद कर दिया, अब वो ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा। म्यूचुअल फंड ने भी माल लेना शुरू कर दिया है, इस वजह से थोड़ी तेजी है। और आज जो है मॉनिटरिंग पॉलिसी का भी ऐलान होने जा रहा है, तो उसमें ज्यादातर एक्सपेक्टेशन तो ये है कि अनचेंज ही रहेगा। ये भी एक मार्केट के लिए अच्छी खबर है कि मार्केट पॉलिसी रेट बढ़ेगा नहीं, नीचे रहेगा।
ये मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। मारीन का कहना है कि शरह सूद में कमी ने मार्केट को नई बुलंदियों तक पहुंचाया है, जबकि आइंदा दिनों में भी मुस्बत रुझानात बरकरार रहने का इम्कान है। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश में वन सिटी 21। सोना फिर महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 2600 रुपये बढ़ गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2229 रुपये का इजाफा हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आमनी बाजार में सोना $26 महंगा होकर $4325 फी आउंस पर पहुंच गया। इस इजाफे का असर मुकामी सराफा बाजार में भी हुआ, जिससे 1 तोला सोना 2600 रुपये बढ़कर 4,54,862 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 2229 रुपये इजाफे से 3,89,970 रुपये पर पहुंच गया। 1 तोला चांदी 68 रुपये इजाफे से 6,532 रुपये पर पहुंच गई। शांति नगर के लाल स्पोर्ट्स ग्राउंड में तकरीम असातिज़ा के ज़ेर-ए-तमाम खेलों के मुकाबले मुनक़िद हुए। मुस्तक़बिल के मेहमानों ने स्पून रेस, रस्साकशी और दीगर मुकाबलों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। जावेद इकबाल की रिपोर्ट देखिए। मुस्तक़बिल के हीरोज़ मैदान में उतर आए, मुख्तलिफ खेलों में महारत के जौहर दिखाए। तंजीम तकरीम असातिज़ा के ज़ेर-ए-एहतमाम और गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल के ताउन से तालिब इल्मों के दरमियान गैर निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल, सिंधी मोचीपाड़ा, अंजुमन तरक्की उर्दू स्कूल, दारुल फयूज़ स्कूल और बशीर बलोच स्कूल के तलबा मैदान में आ गए। स्पून रेस, रस्साकशी और दीगर खेलों में भरपूर हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इवेंट में शरीक बच्चों ने स्पोर्ट्स डे पर खुशी का इजहार किया और कहा कि ऐसे मुकाबले मुस्तकबिल में भी होते रहने चाहिए। उनका बहुत शुक्रिया कि उनने ये प्रोग्राम रखा, उसमें हम जीते। मैंने 3 लेग्स में हिस्सा लिया, रेस में हिस्सा लिया। इंशाल्लाह मैं जीतूंगी भी सही। और मुझे तमाम टीचर्स का बहुत शुक्रिया कि उनने ये हिस्सा लगा, और स्कूल का भी बहुत शुक्रिया कि वो भी इस स्कूल में इधर आए, इस ग्राउंड में आए और उन्हें हमारे साथ खेलने का मौका किया। मुझे बहुत मज़ा आया। हमें ऐसे ही करना चाहिए, गेम खेलनी चाहिए ताकि पढ़ाई के साथ साथ हमें खेलने का भी मौका मिले। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमारी सेहत भी अच्छी होती है, इसलिए हमें खेलना चाहिए। और हमारे स्कूल के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं जो हमें खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं। असातिज़ा का कहना था कि तालीम के साथ खेलों के फ़रोग़ के लिए भी कोशा हैं ताकि बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा मुकम्मल हो सके। इसमें हमने बच्चों को जो खेल रखे हैं ताकि ये एनर्जी हो इन बच्चों में और उनमें शौक पैदा हो। पढ़ाई के साथ साथ जो है ना खेल भी ज़रूरी है। इस इलाके में ये फर्स्ट टाइम इस तरह से हो रहा है कि ये स्कूल लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे हमने 4-5 स्कूलों को इकट्ठा करके उनका प्रोग्राम कर रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, ज़बरदस्त। आप देख रहे हैं बच्चों को किस तरह से गहमा गहमी और भरपूर तादाद में बच्चों ने शिरकत की है। मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नियाज हुसैन ने बच्चों में इनामात तकसीम किए और कामयाब तलबा को शाबाशी दी। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21।